Find how mass capital M has to be divided into two parts so that they exert maximum force on each other. Maximum gravitational force on each other. So we have one bigger mass capital M. उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है. This mass capital M has to be divided into two pieces so that when they are kept at certain distance, उनके बीच में जो gravitational force है वो maximum होना चाहिए. So let's say M1 is X, M2 कितना बचेगा फिर कैपिटल M minus X. कैसे हम अप्लाई करते हैं मैक्सिमा मिनिमा को इन दी फिजिक्स, इन दी क्वेश्चन, इन दी एप्लीकेशन. वी वांट मैक्सिमम फोर्स, इसलिए हमें पहले फोर्स का फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा. According to the universal law of gravitation, the force acting between these 2 points will be G. M1 is X, M2 is M minus X divided by R square. हमने कैपिटल M को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. One is X, another is capital M minus X. Now, in this particular question, how do we add this? हम पहले x का फंक्शन कैलकुलेट करेंगे और फिर हम उसको डिफरेंशिएट करके देन वी विल डिफरेंशिएट इट एंड पुट इक्वल टू 0. मैक्सिमा की कंडीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0. अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए वेरिएबल क्या है? x. One capital M mass is divided into two different parts. One is x, another is M minus x. If this force is maximum, for maximum value of force, first order derivative has to be 0, df by dx has to be 0. d by dx, g इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, mx minus x square divided by r square. This differentiation should be 0. अब g तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है. r is the distance at which they are kept, that is also constant. तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए जो कंडीशन आएगी mx minus x square, इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 0. m into x, the differentiation is m. That will be m. Right, so if we differentiate this, it becomes capital M, or x square का differentiation 2x is equal to 0. So that means x should be equal to m by 2. When a mass is divided equally into two parts. So अगर हमने एक को m by 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, then force is maximum. यहाँ पे डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करके देखो, डबल डिफरेंशिएशन किसका? It is m minus 2x. So obviously it is coming out to be minus 2. डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता था एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ओनली. सो जो भी वैल्यू हमारे पास मिली है एक सिंगल वैल्यू सॉल्व करके, फॉर x इक्वल्स टू m by 2, यानी जब हम किसी भी मास को हाफ दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो उनके बीच में फोर्स हमेशा मैक्सिमम लगता है. दैट फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज मैक्सिमम. करेक्ट? बेटा समझ में आ गया ये? यस सर. x की वैल्यू m by 2 आएगी तो दोनों फोर्सेस व्हेन द मासेस are equally divided into two parts, half and half, then the force acting between them is maximum. So किसी भी मास को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, then what is the maximum value of force acting between them is G m1 m2
m by 2 m1 m2 divided by r square. This is the maximum value of force possible between the two. Right? Okay. So ऐसे maximum minima को हमें जब भी पता करना होगा what is the maximum force acting between them, at what position a particle should be kept so that it has the maximum force. We can use the maximum minimum concept. Next concept is integration. जैसे हमने differentiation समझा था, differentiation represent the rate of change. ऐसे integration मतलब integrate करना means add करना. So if any function, we know some function value for a very small interval, y versus x, कोई भी example लेते हैं, let's say y is equal to x square, same example. हमें इस function की value किसी एक point पर पता है, but at certain point x we know this value for a very small change, जैसा हमने differentiation में पढ़ा था dx. In such a small interval, एक किसी point पर हमें उस function की value पता है, और ऐसे जितने भी पॉसिबल इंटरवल्स हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ y, उन सबको ऐड करना, दैट एडिशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. अब एडिशन हम ऐसे नॉर्मली एडिशन क्यों नहीं कर सकते, जैसे लिखा हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. x0 पर y की वैल्यू 0 है, x1 पे y की वैल्यू 1 है, x2 पे y की वैल्यू 4 हो जाती है. इन नंबर्स को ऐड करना है तो हम लिख लेंगे सिग्मा ऑफ y. इनका एडिशन क्या बोलते हैं हम, सिग्मा ऑफ y या सिग्मा ऑफ x. सिग्मा मतलब कि टेकिंग 0 to 1 to 2 फॉर ऑल इंटीजर. लेकिन जब हम उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअसली ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हेन वी रिप्रेजेंट द सेम फंक्शन द ग्राफ, तो ये 0 के बाद डायरेक्टली 1 वैल्यू नहीं ले रहा है, इट इज टेकिंग ऑल द पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन 0 and 1. It is taking all the values between 0 to 1. So if I say add all the numbers between 0 and 1, it is not practically possible. Why? Because there are infinitely many numbers between 0 to 1. तो ऐसे y is equal to x square कोई फंक्शन है, या y is equal to x cube कोई फंक्शन है, इसमें x equals to 1 से x equals to 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं, उन सबको ऐड करना, दैट इज नॉट पॉसिबल. लिस्ट करके तो पॉसिबल ही नहीं है. सो हम ऐसे किसी एक छोटे से इंटरवल में y की जो वैल्यू है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन. जब आपने ग्राफ पढ़ाना सीखा होगा कभी भी बचपन में, तो हम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, ये दिस लेंथ इज x और y की जो वैल्यू होती है, y इज सपोज 4, तो हम 0 से 4 तक ये लाइन ड्रॉ करते हैं. दिस फंक्शन इज. तो ये जो लाइन है, इसकी लेंथ है y और इसकी ब्रेड्थ है dx. ऐसे जितने भी पॉसिबल लाइंस बन सकती हैं बिटवीन x1 टू x2, उन सारी लाइंस का एडिशन, उन सारी लाइंस की मतलब उन सारे y के वैल्यूज का समेशन, that summation is called integration. Sum of all values of y, sum of all values of y from x equals to x1 to x equals to x2. This is the meaning of integration. इसको हम बोलेंगे integration of y with respect to x. कुछ पॉइंट्स के लिए या कुछ नंबर्स के लिए करते हैं, then we represent it by sigma. Integration of y with respect to x.
इज दैट सिंपली मीन्स हम उन सारी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं जितनी भी x1 से x2 के बीच में आने वाली है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नंबर को अगर हम 0 से 1 के बीच में सारे नंबर्स लिख के ऐड करना चाहें, सिग्मा बिकम्स इंटीग्रेशन फॉर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, व्हाट डज इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट? इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी फंक्शन की सारी वैल्यूज का एडिशन, समेशन। इट रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। इट रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y। अब इसको हम यूज फिजिक्स में कहाँ करेंगे? सपोज किसी एक पॉइंट पर हमें वेलोसिटी पता है, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इफ यू हैव टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो हम वेलोसिटी को टाइम में इंटीग्रेट करके फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड, 0 to 1 आवर, 0 to 5 सेकेंड, जितने भी टाइम इंटरवल में टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, वी ऑलवेज कैलकुलेट दैट। जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में इन फिजिक्स वी नीड टू अप्लाई दिस लिमिट, जो इसमें इनिशियल x1 है और फाइनल x2 है। विदाउट दिस लिमिट हमें ये नहीं पता है कि हमें कहां से कहां तक की वैल्यूज को ऐड करना है या सम करना है। दैट विल नॉट बी अ सिग्निफिकेंट वैल्यू, क्योंकि उसमें हमें पता ही नहीं है कि हम कहां से कहां तक ऐड करने वाले हैं। देन इट इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जब हम किसी भी इंटीग्रेशन पे लिमिट लगाते हैं, जो कि फिजिक्स में हमेशा लगाएंगे, बिकॉज फिजिक्स में हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने। Definite integration is always between the limits, between the lower limit to upper limit. In this case, lower limit is x1, upper limit is x2. Indefinite integration के लिए we don't have the limits, we don't have any initial and final point. उसको हम बस just like that ऐसे लिख लेते हैं. We write integration of y with respect to dx. This is the indefinite integration. इसमें हमें एक function मिलेगा. अगर हमने x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया है तो हमें एक्स क्यूब जैसा कुछ फंक्शन मिलेगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इसलिए हमें उसके लास्ट में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन वैल्यू अनलेस वी नो इट्स बाउंड्री, कि हमें कहां से कहां तक ऐड करना है। अभी हम सिर्फ इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल मतलब समझ रहे हैं। हाउ एंड वेयर टू यूज, दैट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन स्पेसिफिक। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम समझेंगे अभी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जस्ट लाइक वी डिड इन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल। स्मॉल इंटरवल में कोई क्वांटिटी चेंज हो रही है, उसका रेट ऑफ चेंज इज गिवन बाय डिफरेंशिएशन। इन एनी स्मॉल इंटरवल वी नो द वैल्यू, इन स्मॉल इंटरवल वी नो द वैल्यू ऑफ सम फंक्शन, और हमें किसी बड़े इंटरवल में उन सारे वैल्यूज को ऐड करना हो तो हम उसको करेंगे इंटीग्रेशन। So in a way, differentiation and integration are inverse of each other. हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट कर दें या डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दें, we will be getting the same value back. So could you please explain the example you gave of integration? Come again. Okay, this फिर से बोलना विशुद्ध, क्या पूछा आपने? So could you please explain the example you gave about how we use integration? Yes. I'll do that. अभी हम समझ रहे हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इट्स लाइक समेशन। जब हमें कॉन्टिन्यूअसली चेंज होने वाली किसी चीज को ऐड करना हो, देन जैसे सिग्मा ऑफ एन, वेयर एन इज एन इंटीजर, इसको ऐड करना हो तो हम सिग्मा का सिंबल लगाते हैं। मतलब हमें ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4, कुछ इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 AP का समेशन। बट अगर हम ऐसे बोलें कि सारे x को ऐड कर दो, जितने भी नंबर्स हैं 0 से n के बीच में, add all the numbers, not integer, add all the numbers, that won't be possible. That will be possible only when we integrate 0 to n. This is sum of all the values. So integration is the sum of an infinite number of integers. Integration is sum of any continuous function. This is continuously changing. It's after 0. It's not becoming 1 directly. It is increasing continuously. Sum of all possible values of continuous function.
जो ऊपर सिग्मा n लिखा था, n इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, n हैज अ रिस्ट्रिक्शन, n इज जस्ट एन इंटीजर। सपोज हम 0 to 5 कर रहे हैं तो हमें यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर हम ऊपर कर रहे हैं n इक्वल टू 1 to 5, then we can just add it like 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. That's it. So when this function becomes a continuously changing function, which is defined for all values of x, which can have all the values of x, then we will always use integration. फिजिक्स में कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, हम सब समझेंगे। बस अभी डिफरेंस समझो कि जैसे वहां पर हमने एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएट किया था। एवरेज के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी बहुत छोटे से इंटरवल में चेंज, रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना हो, देन वी डू इंटीग्रेशन। लाइकवाइज फॉर एनी फंक्शन अगर उसकी कुछ ही पॉसिबल वैल्यूज हैं, देन टू ऐड वी हैव इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, वी हैव समेशन। इफ इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो उसकी वैल्यूज को ऐड करने के लिए वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन ऑल द टाइम। बस एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन और समझ लेते हैं क्योंकि ये ग्राफ से रिलेटेड है। किसी भी फंक्शन में y की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? y इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ दिस लाइन। सो हम बोल रहे हैं कि हमें x1 से x2 के बीच में सारी वैल्यूज को ऐड करना है, which means all these lines have to be added। हम इन सारी लाइंस को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? दिस शेडेड एरिया। इंटीग्रेशन किसी ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? इंटीग्रेशन इन द ग्राफ रिप्रेजेंट एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ विद एक्स एक्सिस। वहां पर क्या करता था? रिप्रेजेंट डिफरेंशिएशन दैट रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ विद एक्स एक्सिस फ्रॉम x1 to x2। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करो या अगर हम एरिया निकाल सकते हैं किसी और तरीके से, देन बोथ विल ऑलवेज बी इक्वल। तो हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी इन द मैथ्स। इंटीग्रेशन समेशन होता है किसी भी फंक्शन का सारी वैल्यूज के लिए, और इंटीग्रेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। These two things you have to understand about the integration। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी हैव सम फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन समेशन फाइनाइट वैल्यू तभी होगी जब हमें पता हो कि लोअर लिमिट कहाँ से और हमें अपर लिमिट कहाँ तक स्टार्ट करना है, कहाँ तक करना है। Once we know the lower and upper limit, only then we have a definite value. Otherwise, it is indefinite value, indefinite integration. Integration represent always area bounded by the graph with x-axis, जिसके भी रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। Another formula, अगर हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे f को डिफरेंशिएट करें और हमें g मिल रहा है, which means if we integrate g over x तो हमें फंक्शन f मिलेगा। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर काइंड ऑफ अपोजिट ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट करो या इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करो, we will always get the same function। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर इनवर्स फंक्शन, ऐसा बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर opposite, are inverse operation, not function, inverse operation। अगर हमने जैसे मल्टीप्लाई करके उसी नंबर से डिवाइड कर दो, दैट कम्स सेम। लाइकवाइज व्हेन वी हैव अ फंक्शन, उसको हम डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दें या फिर इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट कर दें, वी गेट ऑलवेज। बेटा ये समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट है, राइट? एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन,
ये जो इंटरप्रिटेशन है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा यू विल हैव टू यूज दीज फॉर्मूला ओनली। जैसे हमने कुछ, तो अभी हम सिर्फ इनडेफिनेट के लिए कर रहे हैं, और उसको कैसे डेफिनेट में कैलकुलेट करते हैं दैट विल सी। जैसे x टू द पावर n का हमने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने में एडिशन हो रहा है तो पावर बड़ी होगी, x टू द पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। जब हम किसी बड़े फंक्शन को छोटी वैल्यू में ब्रेक कर रहे थे तो देन द पावर रिड्यूसेस, x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करने पे x टू द पावर n माइनस वन हो गया, इंटीग्रेट करने पे that is increasing, that should increase, it become x to the power n plus 1, right? बेटा ये समझ में आ रहा है लॉजिक? डिफरेंशिएट करने पे वैल्यू छोटी होती है इसलिए पावर छोटी हो गई थी n से n माइनस वन, इंटीग्रेट करने पे टोटल वैल्यू बढ़ जाएगी तो x टू द पावर n को इंटीग्रेट करने पे x टू द पावर n प्लस वन हो जाएगी। क्लियर? अब इस फंक्शन में सारी वैल्यूज हो सकती हैं बट ये n इज इक्वल टू माइनस वन नहीं हो सकता, बिकॉज इफ n बिकम माइनस वन इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट माइनस वन। अगर माइनस वन हो जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा जीरो, एंड समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, समथिंग डिवाइड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसमें n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इट बिकम एक्स क्यूब बाई थ्री। अभी हम कर रहे हैं सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट क्योंकि हमने लिमिट नहीं पता है, so इसके लिए हमें प्लस सी लिखना होता है मैथमेटिकली, बिकॉज दिस फंक्शन कैन टेक एनी वैल्यू एंड सी इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बट हमें फिजिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम हमेशा या तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे या किसी ऐसी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल ऑलवेज बी a fixed and finite value. Integration of root x become x to the power half, इंटीग्रेशन करने पे हाफ प्लस वन थ्री बाई टू, हाफ प्लस वन थ्री बाई टू प्लस सी, सी अभी नहीं लिखते हैं, कॉमन सेंस है वो हर बार, टू बाई थ्री एक्स इज टू पावर थ्री बाई टू। So why did you add c? बेटा ये इसलिए क्योंकि इस फंक्शन की ना कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द लोअर लिमिट एंड व्हाट इज द अपर लिमिट। Okay, sir. So that's why we don't know, that's why we have to add, that is just you say the standard procedure that you should write C मैथ में, बट हमें फिजिक्स में जरूरत नहीं है, फिजिक्स में हम कभी भी इनडेफिनिट करेंगे नहीं, तो अभी आप उसको नहीं भी लिखते हो चलेगा, बिकॉज वी ऑलवेज हैव टू नो कि हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करने वाले हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो किस टाइम पे निकालनी है, एक्सलेशन कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, सो इट हैज टू बी ऑलवेज at some fixed point, it should not be a random function. Integration of 1 upon x square, to take example 1 upon x square, इसको पहले ऊपर न्यूमरेटर में लाएंगे, x to the power माइनस टू बन गया, फॉर्मूला लगा लो माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन, x to the power माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, दैट बिकम माइनस वन बाई एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स क्यूब सबके लिए हो सकता है, बट 1 अपॉन एक्स के लिए नहीं हो सकता। 1 अपॉन एक्स के लिए हम इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। राइट, नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स, ये आपको करना है, इंटीग्रेट 1 अपॉन रूट एक्स ओवर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x to the power 3 by 2, integrate t square 3t square plus 2t plus 1 with respect to dt, और हमें वही एक सिंगल फॉर्मूला यूज करना है,
x to the power n on integration becomes x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. Two root x. हाँ बेटा, 2 root x. 2 root x, yes, फर्स्ट का 2 root x, 1 अपॉन रूट x, ये नीचे की तरफ होगा 1 अपॉन x टू द पावर 1/2, ऊपर जाएगा x टू द पावर -1/2, which will be x to the power -1/2 plus 1 divided by -1/2 plus 1. So next -2 upon root x. X to the power 1/2 divided by 1/2, which becomes 2 root x. नेक्स्ट वाले को भी हम ऊपर लेके जाते हैं, -3/2 -3/2 plus 1 divided by -3/2 plus 1, x to the power -half divided by -half, that become -2. x to the power -half को नीचे रख लेंगे तो -2/√x. Right? थर्ड वाले में when you integrate, इसमें हम 3 बाहर निकाल लेंगे because it is a numeric number constant. t स्क्वायर केवल हम फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, 2 बार आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, और इसमें 1 बार आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी. इसमें कुछ है नहीं, दिस इज जस्ट 1. 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए पावर क्या लेंगे? 1 कैन बी एज्यूम्ड एज पावर 0, t raised to power 0. So 3t square में it become 3 t to the power 2 plus 1, that is 3 divided by 3 plus 2, t to the power 1 plus 1, 2 divided by 2, plus t to the power 0 plus 1, 1 divided by 1. 3 to 3 gone, 2 to 2 gone. It comes out t cube plus t square plus t. This is the integration of 3t square plus 2t plus 2. अभी हम ये सारे कर रहे हैं in different integration because the limit is not known. Sir, so we can't do it for n equals to -1. We cannot do for x is equal to -1. Yes, that's not defined. That's for that there is a different formula. Okay, sir. वो भी हम करेंगे in today's class. In this formula, all the n values are acceptable: positive, negative, fraction, integer, but we cannot apply, we cannot use this for -1. अब इसमें अगर हमें लिमिट लगानी हो, then what is the method to apply the definite integration or calculate the definite integration? So definite integration is, पहले हम नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी फंक्शन आया, सपोज f को हमने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू dx इज gx.
यस, f को इंटीग्रेट करने पे अगर g मिलता है, नाउ व्हेन वी अप्लाई लिमिट फ्रॉम x1 टू x2, अप्लाइंग दिस लिमिट फ्रॉम x1 टू x2 का मतलब हम g पर लिमिट x1 टू x2 अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स जो भी फंक्शन आया है उसकी अपर लिमिट पे वैल्यू माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू। ये अभी इस मेथड में समझ नहीं आ रहा होगा व्हाट इज इट इज। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से fx इज x स्क्वायर। हम x स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं बिटवीन 1 to 3, x इक्वल्स टू 1 to x इक्वल्स टू 3। बिटवीन दिस लिमिट वी आर इंटीग्रेटिंग। सो अभी लिमिट भूल जाते हैं, पहले हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट लगाएंगे 1 to 3। पुट x इक्वल्स टू 3, देन अपर लिमिट पे वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट लोअर लिमिट। फर्स्ट इंटीग्रेट, नॉर्मल जैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन। आफ्टर इंटीग्रेशन we will put upper limit minus lower limit, the value of the function at upper limit minus the value of function at lower limit। x equals to 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो 27/3 minus 1/3, this result comes out 26/3। अब अगर इसी क्वेश्चन का दूसरा वर्ड हो, दूसरा वर्जन, find the area bounded by the parabola y is equal to x square from 1 to 3, x equals to 1 to x equals to 3। वन से 3 के बीच में जो एरिया बाउंडेड है, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, देन दिस एरिया विल बी हाउ मच? दिस शेडेड एरिया विल बी नथिंग बट 26/3 मीटर स्क्वायर। अगर मीटर है तो, अगर सेंटीमीटर है तो 26/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एरिया, so this will be equal to area under the curve। राइट, डिफरेंट इंटीग्रेशन कर लिए, इसको सिर्फ हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है। लिमिट मतलब वैल्यू एट अपर लिमिट माइनस वैल्यू एट लोअर लिमिट। यस रशिद, बताइए। Could you please explain the example again? दिस एग्जांपल अगेन, ओके। हमने x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना था, x टू द पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, इट बिकम x क्यूब बाय 3 बाय यूजिंग दीज नॉर्मल इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज, करेक्ट। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो भी फंक्शन आएगा उसको हमने यहाँ पे एज gx लिखा था। Now we will find out the value of this function at the upper limit। upper limit कितनी थी यहाँ पे? x equals to 3। So we just substitute x as 3। Okay, sir. Become 3 cube by 3 minus the value of lower limit minus the value of function at lower limit. Lower limit is x equals to 1. So that become 1 cube by 3. 27/3 minus 1/3, it will be 26/3। Okay, sir. Thank you. और डिफरेंट इंटीग्रेशन ही एरिया रिप्रेजेंट करता है। विदाउट द लिमिट इंटीग्रेशन कैन नॉट रिप्रेजेंट एरिया बिकॉज वी डोंट नो द बाउंड्री ऑफ दैट एरिया। राइट, अब ये जो फर्स्ट फंक्शन था फॉर द इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n is equal to x to the power n plus 1 is equal to n plus 1 divided by n plus 1। Next formula for integration is करेक्ट। अब अगर सपोज हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और इंटीग्रेशन के लिए वो n की वैल्यू माइनस बना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ऐसा नहीं कि पॉसिबल ही नहीं है, दैट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। दैट फॉर्मूला x टू द पावर n, दैट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सो जैसे हमने अभी लॉजिक क्या यूज किया था, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंशिएट करने पे g आता है,
तो g का इंटीग्रेशन f बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ g विल बिकम f। अब हम ऐसा समझेंगे 1/x किसका डिफरेंशिएशन है? 1/x इज डिफरेंशिएशन ऑफ विच फंक्शन? 1/x किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलता था? इफ यू रिमेम्बर, अगर याद नहीं है तो आप पीछे देख सकते हो। विच फंक्शन ऑन डिफरेंशिएशन गिव्स 1/x? ln x। सो इसका मतलब 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो जाएगा। दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो हम करेक्ट। 1/x को इंटीग्रेट करने पे हमें वो फंक्शन मिलेगा जिसका डिफरेंशिएशन 1/x है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस लॉजिक, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले या तो याद है आपके पास लिखे हुए हैं, with that we can find out the integration and we can think what should be the integration function। जैसे ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, so 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। with that logic what should be the integration of sin x? cos x को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलता है? what is the differentiation of cos x? what is the differentiation of cos x? minus sin x। माइनस साइन एक्स। लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस चाहिए, तो इसका मतलब हमें किसको डिफरेंशिएट करना होगा? माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस। आपको ये फॉर्मूले ही याद करने हैं एज सच। आई एम जस्ट रिलेटिंग इट विद द डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम पहले कर चुके हैं। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स मिलता था, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करने पे साइन एक्स मिल जाएगा। Integration of cos x dx is sin x। tan x को डिफरेंशिएट करने पे sec स्क्वायर x मिलता है, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने पे tan x मिल जाएगा। So formulas are not new, just you have to go in the opposite direction। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का इंटीग्रेशन sin x। समझ आ रहा है? बेटा समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इन फॉर्मूलेस को आपको अलग से लिख के लर्न करना है, बट थोड़ा हमें आइडिया हो कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो हम अगर भूल भी जाएंगे स्टिल वी कैन गेट द रिजल्ट। अब e रेज़ टू पावर x इसका डिफरेंस किसका डिफरेंशिएशन होता था? ये e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x को डिफरेंशिएट करने पे सेम मिलता है, सो इंटीग्रेट करने पे भी सेम मिलेगा। और बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, बट इंटीग्रेशन और फिर प्रोडक्ट में, डिवीजन में इट बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, जो आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, बट मैथ्स में उतना डिटेल में भी नहीं पढ़ते, ये जरूरत नहीं पड़ती। तो इंटीग्रेशन में हमें मोस्टली बस इसी टाइप के फंक्शन चाहिए, सिंपल वाले। 1x to the power n, 1/x, sin x, cos x, sec स्क्वायर। अब जैसे प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल जैसा कुछ हमने जो डिफरेंशिएशन में किया था, वैसे ही कुछ यहाँ पर होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड समथिंग बाय सम अदर नेम, जो आप मैथ्स में पढ़ोगे। वी डोंट नीड दैट इन फिजिक्स। राइट। अब जैसे चेन रूल था, वैसे यहाँ पर एक दूसरा सिंप्लीफाइड रूल है, चेन रूल। यानी चेन रूल में इट कैन हैव एनी फंक्शन इन द डिफरेंशिएशन इनसाइड अ फंक्शन। इंटीग्रेशन केवल हम उन्हीं फंक्शंस के लिए देखेंगे जिनमें फंक्शन लीनियर हो, बट उसका कुछ कोफिशिएंट आ जाए। दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट रूल। कोफिशिएंट रूल, कोफिशिएंट रूल क्या होता है? अगर किसी फंक्शन में x के साथ साथ कोई
मल्टीपल में कोफिशिएंट आ, जैसे सपोज आ गया sin 3x into dx, so then we have to use the coefficient rule. अब जैसे वहां पे चेन रूल था कुछ वैसा, बट quite simplified version is the coefficient. So in that function sin 3x, हमारे पास sin x के इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला है, sin 3x के लिए नहीं. We don't have formula for integration of sin 3x. So जैसे कुछ वहां पर किया था हमने, क्या किया था, 3x को t एज्यूम कर लेते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम 3x को t एज्यूम कर लेंगे. Put 3x as t. This becomes sin t. ये तो लीनियर बन गया, लेकिन अभी भी ये dx है. अब sin x का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में करते हैं, sin t का इंटीग्रेशन हम dt के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, dx में नहीं कर सकते. The variable has to be same. जिस फंक्शन का वेरिएबल है, जिस फंक्शन में x का है या t का है, similarly we should do it for similarly we have to change this also for t. So जैसे इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, बोथ साइड 3 times 3x by dt, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में आ गया. राइट. x को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, राइट साइड में तो t था, यहाँ पे dx को अगर हम dt में रिप्लेस कर ले, वेट, जस्ट वेट, माय बैटरी. यस. सो जैसे हम वहां पे x को t में चेंज कर देते, सिमिलरली हियर आल्सो वी विल चेंज dx in terms of dt by differentiation. So dx can be replaced as dt by 3. ये बन जाएगा sin t into dt by 3. 1/3 को बाहर निकाल लो. Integration of sin t with respect to dt, this we can apply from the formula. Sin x integration is minus cos x. Sin t integration will become minus cos t. और t की वैल्यू को हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t we took as 3x. So sin 3x का इंटीग्रेशन बन गया minus cos 3x divided by 3. So the ultimate rule which we'll follow for the coefficient, अगर किसी फंक्शन में x का कोफिशिएंट आ जाता है तो पहले हम जैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं वैसे नॉर्मली इंटीग्रेट करेंगे. sin x minus cos x, sin t minus cos t, sin 3x will be minus cos 3x, and then at the end we have to always divide by the coefficient of x. पहले normally integrate करेंगे and then this whole function we will divide by the coefficient of x. जैसे ये जो मेथड था ये सिर्फ प्रूफ के लिए था, एक बार कन्विंस करने के लिए कि हमें डिवीजन क्यों करना पड़ता है, बिकॉज व्हेन वी चेंज द वेरिएबल फ्रॉम x टू t, जितना भी कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा इन चेंजिंग फ्रॉम dx टू dt. राइट. सो हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, जस्ट लाइक वी डिसाइडेड इन द चेन रूल आल्सो, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दैट मच नॉर्मल इंटीग्रेशन, एंड इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी फंक्शन आएगा, जैसे सपोज 3x plus 2q into dx, इस पूरे को x की तरह एज्यूम कर लो, 3x plus t की तरह एज्यूम कर लो, टू द पावर t plus 1 डिवाइडेड बाय t plus 1, और इस पूरे फंक्शन में हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ 3 इन द फाइनल रिजल्ट.
right? बेटा ये समझ में आ गया? इसको प्रूफ करना हो तो 3x + 2 को फिर से हम t एज्यूम कर लेंगे एंड देन वी विल गेट द सिमिलर रिजल्ट। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, ex का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x होता है और जितना कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x + 2, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन, so cos 5x + 2 का इंटीग्रेशन sin 5x + 2 and then we divide by its coefficient, right? So integration करने में we always have to use this method. Yes. ओके, इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन में जो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा भी फंक्शन है दैट इज दिस। सो अब सपोज इफ आई आस्क यू इंटीग्रेट sin 2x dx लिमिट फ्रॉम 0 to π/4, तो पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। sin 2x मींस माइनस cos 2x और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे एंड देन वी हैव टू अप्लाई दिस लिमिट फ्रॉम 0 to π/4 इंटीग्रेशन एंड देन अपर लिमिट। करो उसको इंटीग्रेट, आगे क्या आएगा? आयुष, वेरी गुड। sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos 2x/2 पुट द लिमिट। वैसे हम इसमें माइनस हाफ, क्योंकि तो कांस्टेंट है बाहर भी निकाल सकते हैं, वी कैन टेक माइनस हाफ आउटसाइड cos 2x 0 to π/4 minus half is constant taken outside cos π/2 minus cos 0. Cos π/2 means cos 90 and cos 0 means cos 90 is 0, so minus half into 0 minus cos 0 is 1, minus minus plus हो जाएगा, it become 1/2. Integration of sin 2x will become 1/2. ओके, एक दो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती कहाँ पे? जैसे velocity is defined as rate of change of position or displacement. V is dx/dt. dx is very small displacement in time interval t. This is a very small displacement. ये हम अभी next chapter में use करेंगे. I'm just giving few example.
small displacement in time dt. Now, this is another use of integration or application of integration. हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा था, उसके एग्जांपल देखा कैसे हम यूज करेंगे. Small displacement in time dt is vx dt. Now, if we have to find the total displacement in time t, initial x1, final x2 position, initial time 0, final time t. This is total displacement in time t. अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती जा रही है एंड इट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम v को वेलोसिटी को टाइम में इंटीग्रेट करेंगे एंड दैट इंटीग्रेशन विल बी ऑलवेज विद इन अ प्रॉपर लिमिट, क्योंकि बिना लिमिट के हम रियल वैल्यू या डिफरेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते. एग्जांपल, suppose velocity of a particle at time t is given as velocity of particle at any time t is given as v is equal to 4t cube minus 3t square plus 2t plus 1. Calculate the total displacement in 2 seconds. Calculate the displacement in 2 seconds. So displacement, ये dx को solve करने पे जो displacement आएगा that is x2 minus x1. Displacement is 0 to t times v dt. Four t cube minus 3t square plus 2t plus 1 times dt, limit from 0 to 2. Integrate this and give me the value. ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये एक्चुअल में क्या है, इधर भी dx का इंटीग्रेशन x आया था और उस पर लिमिट लगाने पे x2 minus x1. Final position minus initial position, that change in position is called displacement. That is called displacement. Sir, 14 meter. 14 meter. Okay, please confirm. Yes, someone please confirm this. Nandita, ये समझ आ रहा है? Yes, sir, understood. Yes, sir. 14. What is the answer? 14 meters. 14 meters. Okay. Right. So 4 t cube integration is t4 by 4 minus 3. T square integration is t cube by 3 plus 2. T integration is t square by 2. 1 integration is t. Zero to 2. 4 gone, 3 gone, 2 gone. It comes out t to the power 4 minus t cube plus t square plus 2. T4 minus t cube plus t square plus 2. Limit from 0 to 2. 16 minus 8 plus 4 plus 2 minus 0. 14 meters is the displacement. वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी. सिमिलरली वी विल यूज इंटीग्रेशन. Similarly, we will use integration for calculation of the quantity over a large interval.
ओके, इंटीग्रेशन को हम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ से एरिया कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं. If velocity versus time graph given हो, हम इसका एरिया निकालें, that area will also be representing the displacement. So we saw the differentiation, we saw the integration. Next, अगला पार्ट जो हमें करना है मैथ्स बिफोर स्टार्टिंग दिस नेक्स्ट चैप्टर is the graphs. Graph and a bit of trigonometry also we will do before starting the next chapter. Next chapter is motion in a straight line kinematics. Vectors हम अभी नहीं करेंगे, vectors हम यूज करेंगे next chapter में, which is motion in a plane. एक साथ बहुत सारी मैथ्स थोड़ा बोरिंग हो जाती है मेरे लिए. Graph, but these are the initial essential part which we require in the coming chapter. ग्राफ आपने शायद 8-9 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. किसी भी फंक्शन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, एक y का x के साथ रिलेशन, कुछ पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते थे ऑन द x एक्सिस y एक्सिस corresponding and then we join them. But every time we cannot do that. We get 3-4 points and then only we will get the shape. So based on the function and the variety of function, we have categorized some standard graph. First is straight line graph. स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इफ इन एनी फंक्शन बोथ y and x are linear, y is equal to mx plus c, this is the standard equation, this is the equation of straight line. When both y and x are linear, it will be represented by a straight line on the graph. दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, both x and y linear, then equation will be straight line. इस इक्वेशन में c क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन ने y एक्सिस को कहां पे कट किया. In this is represent that where does the line act on the y intersect on the y axis. C is called y axis intercept. If it is positive तो ये positive axis पे कट करेगा, if it is negative तो ये negative axis पे कट करेगा. And m slope is defined as tan theta. M is equal to tan theta and tan theta is called slope of this line. Theta is the angle that line makes with the x-axis in anti-clockwise direction. Theta is always the angle that line makes with x-axis in anti-clockwise direction. With the help of these two values, we can roughly plot the equation on the graph. अब जैसे slope is tan theta, अगर किसी भी equation में slope is positive, tan theta positive तभी होता है when angle is less than 90. If slope is positive, तो उस line का x axis के साथ angle हमेशा acute angle होगा less than 90. If slope is negative, then line will make an obtuse angle greater than 90 with the x-axis. Example, let's say y is equal to 3x minus 2. इसको हमें plot करना है on the straight line on the xy axis. Compare with the standard equation, y is equal to mx plus c. m की वैल्यू आ गई +3 और c की वैल्यू आ गई -2. c is y axis intercept, तो c पे तो ये -2 पे कट करेगी और क्योंकि स्लोप है पॉजिटिव, so it should make an angle less than 90 degree. This line should make an angle less than 90 degree. This line should be represented like this. Got it? इक्वेशन के एंगल कितना है उसकी हमें जरूरत फिलहाल नहीं है. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द शेप, वेयर डज इट इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस एंड इन विच डायरेक्शन विच कोऑर्डिनेट इट गोस. एंगल इज लेस देन 90 और एंगल इज ग्रेटर देन 90. जैसे सेकंड एग्जांपल, सपोज y इज इक्वल टू -x + 2. अब इसमें y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, +2 पे.
C is +2. So the line intersects on the y-axis at +2. And M is -1. स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एंगल 90 से बड़ा होगा. And C is +2. So it will intersect y-axis at +2. अब लाइन लेफ्ट में नहीं होगी, राइट में होगी. Only then this will make an angle greater than 90. एंगल हम इधर वाला कभी नहीं लेंगे. This angle is not taken. Angle has to be always in anti-clockwise direction from the x-axis. Right, so I am just drawing few of the writing some of the functions. आपको उनके straight line के ग्राफ बनाने. Straight line के ग्राफ बनाने के लिए we require only these two information. y-axis पे कहाँ intersect कर रहा है और slope की angle, slope का sign positive है या negative. Y is equal to 2x plus 5. Y is equal to minus 3x minus 2. Yes, plot these two. पहले वाले में स्लोप है पॉजिटिव. पॉजिटिव स्लोप मींस एंगल लाइन का 90 से छोटा होना चाहिए एंड C इज आल्सो पॉजिटिव. y एक्सिस भी पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करेगी. इंटरसेक्ट y एक्सिस आल्सो पॉजिटिव +5 and then it makes an angle less than 90 with x axis also. So it should be towards left. Only then it is possible to have angle less than 90. बड़ा समझ आ रहा है? कोई डाउट नहीं पूछ रहा है आज? गोविंद जी सर. समझ आ रहा है सब? यस सर. सर ट्राई कर रहा हूँ सर. ट्राई तो करना चाहिए. समझ नहीं आया तो पूछना भी चाहिए. यस सर. सर मतलब थोड़ी बहुत सर कंफ्यूजन है सर. आई गेस जब क्वेश्चंस पाएंगे सर क्लियर हो जाएगा. सर एक बार पिछले पेज पे जा सकते हैं क्या? बेटा आवाज नहीं आ रही, किसी ने कुछ बोला? सर एक बार पिछले पेज पे जा सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल. When we draw, ये थोड़ी मैथ्स है. मैथ्स इज अ लिटिल, क्या बोलूं, ड्राई फॉर मी. तो इसके साथ कॉन्सेप्ट एसोसिएट करने वाले नहीं है, तो यू हैव टू जस्ट लर्न विद दिस मिनिमम पॉसिबल रिजल्ट. इक्वेशन की लाइन में बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बट हमें सिर्फ फिजिक्स में उतना पार्ट सीखना है जिससे हम किसी ग्राफ को एक रफली प्लॉट कर ले इक्वेशन में, ग्राफ में. That graph will be going towards the positive x-axis or towards the negative x-axis. Graph plotting के लिए we have to know, अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो हमें केवल ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए. उसने y-axis पे कहाँ इंटरसेक्ट कट किया है और उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन का है. ओके सर, थैंक यू. यस, और बताइए किसी को डाउट? जो भी इसमें डाउट है प्लीज क्लेरिफाई अभी. बेटा देख लो आराम से, कोई डाउट अभी तक जो भी हमने किया है. वी डिड इंटीग्रेशन. थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट फॉर्म इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट मैक्सिमम. लास्ट क्लास में किया था. इंटीग्रेशन क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल वैल्यूज. किसी भी क्वांटिटी के अगर हमें सारी छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करना हो तो हम इंटीग्रेट करेंगे. छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करके टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर लिया. इंटीग्रेशन ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है उसके एक्स एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया. इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन इज एग्जैक्टली इनवर्स फंक्शन. किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट कर दो या डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दो, यू विल कम बैक टू द सेम फंक्शन. कुछ बेसिक फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के जो हमें यूज करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन इन द कमिंग चैप्टर. और differentiation is only when we have the lower and upper limit from where to which point we have to calculate this. Right. Okay. Then हम आ गए ग्राफ पे. ग्राफ is the representation, graphical representation of some mathematical equation. इक्वेशन देख के या किसी फंक्शन को देख के हमें अब ये पता पड़ जाना चाहिए कि हम उस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं.
whether it is straight line, parabola, circle, ellipse. So there are some standard functions. First of them it is straight line. किसी भी ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट तब करेंगे जब जब उसमें x और y both are linear function. X में भी 1 और y में भी power 1. Only then we can use it for. Only then we can say that the function is a straight line function. और इस ग्राफ को हम स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर दीज टू क्वांटिटीज. y एक्सिस पे कहाँ कट किया उसने और उसके स्लोप का साइन क्या है, whether it is positive or it is negative. इसको दोबारा आराम से आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू जिसको हम मैथ में बहुत टाइम देके फिर लर्न करते हैं, बट वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दैट मच टाइम. हम सिर्फ उतना पार्ट पढ़ रहे हैं अभी जितना कि फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है इन द कमिंग चैप्टर. मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ोगे और जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको जरूरत नहीं है उससे ज्यादा जानने की. इन दिस स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप नेगेटिव है तो एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए और इसका इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो नीचे कट करेगा. अब ये किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? इन विच डायरेक्शन इट शुड बी प्लॉटेड, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? Towards left. Towards left. Towards left. Right. ये जब लेफ्ट की तरफ प्लॉट करेंगे हम तभी ये एंगल ना ग्रेटर देन 90 होगा. Only then this angle will be greater than 90. अगर सपोज किसी फंक्शन में c हो ही ना हो, y इज इक्वल टू 3x, इसका मतलब क्या हुआ? c इज 0. Sir, c passing 0 through origin. y एक्सिस पे ये कहीं भी नहीं कट करेगा, सीधे ओरिजिन से पास होगा. So, but since slope is positive, so इसका एंगल 90 से छोटा होगा and it will be passing through the origin. Correct? Theta is less than 90 because slope is positive. ऐसे अगर सपोज y is equal to -2x है, अगेन y एक्सिस पे तो ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेगा and slope will be -2. -2 means angle will be greater than 90. So it will be going towards the left side. In this case, the angle is greater than 90. Why? Because slope is negative here. But अगर suppose किसी function में m ही 0 हो जाए, if there is no m, will it still be y तो है but x नहीं है, y is equal to 2. Will it still be a straight line function? अगर हम इसको straight line, horizontal line.
करेक्ट। इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो इसमें x नहीं है, इसका मतलब m इज देयर बट इट बिकम 0. It does not mean x is not there. X is there, but the coefficient of x becomes 0. C is +2. M 0 हो गया मतलब tan theta 0. Tan theta 0 means theta 0. और theta 0 means same angle, और same angle का मतलब parallel to x axis. क्योंकि थीटा होता था एंगल किसके साथ, x एक्सिस के साथ. x एक्सिस के साथ अगर एंगल 0 हो गया, that means this line become parallel to x axis. y is equal to +2, so c तो इसने +2 यानी y एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया है, and slope is 0. Slope is 0 means line becomes parallel to x axis. किसी भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का मतलब y लीनियर x लीनियर. अगर x नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि वो फंक्शन स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये x लीनियर होने, x गायब होने का रीजन क्या हुआ? बिकॉज द स्लोप बिकम 0, द कोएफिशिएंट ऑफ x बिकम 0. y is equal to +2. It is a straight line but parallel to x axis. If y will become negative, constant but negative, y is equal to -1. Again m is 0 and c is negative, तो ये y axis पे नेगेटिव पे इंटरसेक्ट करेगा नीचे की तरफ. This will intersect the -1 and again it will be parallel to x axis. Similarly, if x is equal to 2, इसका मतलब क्या हुआ? What is the value of m? Vertical line parallel to y-axis. Parallel to y-axis. Now I asked another question. What is the value of m here? 90 degree. Infinity. Slope is not defined. Infinity, correct. Because now it was y is equal to mx plus 2. So to divide by m. So here that 1 by m becomes 0. M is infinity. m infinity का मतलब हो गया tan theta infinity. ये कैसे किया हमने? y is equal to mx plus c. अभी हम m के x के फॉर्म में लिख रहे हैं, y minus c. x equals to 1 upon m times y minus c upon m, whatever. अब ये जो y का कोफिशिएंट है वो 1 upon m. अगर y का कोफिशिएंट नहीं है मतलब that becomes 0. So 1 upon m is 0. 1 upon m की वैल्यू 0 हो गई तो m की वैल्यू infinity. m is tan theta. Tan theta की वैल्यू infinity कब होती है? When theta is 90 degree. So this line will make an angle 90 degree with the x-axis and it will pass through +2. क्योंकि इसके स्लोप है इनफाइनाइट. स्लोप इनफाइनाइट कैसे है वो हमने अभी कंपेयर करके देख लिया कि इस इक्वेशन में x है बट y नहीं है. इसका मतलब y का कोफिशिएंट 0 है. 1 upon m is 0. 1 upon m is going to be 0. So m is infinity और m होता है tan theta. Tan is infinity when angle is 90 degree. So this line makes an angle 90 degree with x-axis. इतने पॉसिबल टाइप की स्ट्रेट लाइन के हम क्वेश्चंस बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन के. नाउ लेट्स डू 1 or 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल जब हमें फिजिक्स में प्लॉट करना हो. ये तो अभी हम मैथ्स की बात कर रहे थे. सपोज क्वेश्चन सेज द प्रेशर ऑफ एनी गैस डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम एज प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस विद वॉल्यूम. As P is equal to 3V plus 2. Draw P versus V graph. Draw PV graph. And second is draw its VP graph also. दोनों में डिफरेंस क्या है? PV और VP में. In the PV graph, Y एक्सिस पे P होना चाहिए, V को हम चेंज कर रहे हैं. In the VP graph, y एक्सिस पे v वॉल्यूम होना चाहिए और x एक्सिस पे प्रेशर. बोथ विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेम इक्वेशन जो गिवन है p इज इक्वल टू 3v plus 2. अब किसी भी इक्वेशन में कंपेयर करने के लिए या उसकी m और उसकी c की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने y एक्सिस पे लिखा है उसको y पुट कर लेते हैं. लाइक इन द फर्स्ट केस प्रेशर इज ऑन द y एक्सिस. तो इस इक्वेशन में हम p को y से रिप्लेस कर लेते हैं. वॉल्यूम इज ऑन x एक्सिस, v को हम x से रिप्लेस कर लेते हैं. y इज इक्वल टू
3x plus 2 बन गया इक्विवेलेंट इक्वेशन. m is plus 3 and c is plus 2. तो ये प्लस 2 से पास होगा, प्लस 3 का मतलब ऐसे कुछ सही है ये. Is this straight line graph correct? Yes, please. Yes, sir. बेटा ये इक्वेशन सही है, इसमें कुछ कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है. चेक व्हाट इज रॉन्ग हियर. राधिका, Yes, sir. is there anything wrong in this graph? Rishit, is there anything wrong in this? Is there anything wrong in this? किसी को समझ में आ रहा है इसमें कुछ गड़बड़ है? वैसे तो ग्राफ लाइन तो सही है, बट दैट्स द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड फिजिक्स. मैथ्स में आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना होगा. यहाँ पर व्हाट इज दिस क्वांटिटी वॉल्यूम? कैन वॉल्यूम बी नेगेटिव? नो. No. So this will not lie on this axis. It will be starting only on the positive direction. ये ग्राफ जो पूरी थी लाइन जो हमने पूरी ड्रॉ की थी लास्ट सारे एग्जांपल्स में, it will be starting only from this zero value. Volume cannot be negative, so we cannot represent this line on the negative axis. हम पीछे एक्स्ट्रापोलेट करके दे चेक कर सकते हैं कि उसका एंगल लेस देन 90. जब वीपी ग्राफ बनाना है तो change this relation from PV to VP. V comes out 3V is P minus 2. So V is P by 3 minus 2 by 3. V है यहाँ पे y axis पे. V is on the y axis and P is on x axis. So हम V को लिख लेंगे y और P को लिख लेंगे x. Now if you compare here, intercept is negative minus 2 by 3 and slope is positive. So it will be making an angle less than 90. Again इसमें भी वही पंगा हो गया. The volume cannot be negative, so this line cannot go below the x-axis. फिजिक्स में बस ग्राफ बनाते टाइम इतना थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि हम प्रैक्टिकल कंडीशंस को, रियल कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है. We will represent the equation but on the line, but it may not be the whole line. It may be represented by a line segment. Got it? Understood? Yes, sir. Okay, great. ठीक है, so आज के लिए इतना ही रखते हैं. Next class में we will be doing the more graphs, parabola, circle, ellipse, hyperbola, and we will also learn how to use that in the physics. Hopefully next class we will be done with this basic math जो अभी हमें चाहिए, and then we will start the kinematics, motion in a straight line and parabola. Okay, thank you. Go through all this. It is a new concept for many of you. Differentiation integration आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, so it will take time. Don't hesitate. The Friday class, I will first revise all this, give all the doubt. फिर हम कुछ नए questions करेंगे. So don't hesitate. Solve question. अब integration के questions आप कर सकते हैं from SL and Newton both. All the questions from integration, differentiation, and maxima minima, you can now solve from both the books. Okay, thank you. Thank you, sir. सर इस चैप्टर का से कोई टेस्ट कब होएगा? जून में तो नहीं होगा? इस चैप्टर का कोई टेस्ट ऐसा नहीं होगा. ये चैप्टर में, अगले चैप्टर में यूज होगा.
अभी जो टेस्ट होगा वो एरर का होगा, एरर इसमें नहीं आया था जो लास्ट टेस्ट था। एक तो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए प्लान मिल गया आपको, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता दिया करूंगा एक वीक पहले। सर प्लानर में इस वीक के लिए डायमेंशन एनालिसिस का एमसीक्यू लिखा है। इस वीक के लिए एमसीक्यू लिखा है प्लानर में? ओके चलो, आई विल सी। तो डायमेंशन में उसमें अब एरर भी ऐड हो जाएगा, दैट इज अंडरस्टूड, क्योंकि हम डायमेंशन का एक टेस्ट कर चुके हैं पहले। नाउ इट विल आल्सो हैव द dimension plus error both. I'll send the message in the group. Don't worry. Okay. Okay, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you.